బాలరాజు గారిని పరామర్శించి బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం మీద 3 కుట్రలు జరగబోతున్నాయి. 10-15 రోజుల్లో ఈ కుట్రలు బహిర్గతం కాబోతున్నాయి అనే అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 2-3 విషయాలను నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఎక్కడైతే రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఉంటాడో ఆయా రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దాడి, దీని వెనకాల నేర మనస్తత్వం ఉన్న పిసిసి అధ్యక్షుడే ప్రేరేపితమని చెప్పారు. సరిగ్గా 4 రోజుల తర్వాత విచారణ అధికారులు ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు విచారణ చేసి శ్వేతారెడ్డి గారు ఒక పత్రికా ప్రకటన చేశారు. దాడి జరిగింది, కుట్ర లేదు, కాంగ్రెస్ లేదు, సెన్సేషన్ కోసమే రాజు అనే యువకుడు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద దాడి చేసిందని ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన. అయితే ఇప్పటి వరకు రిపోర్టు రావు గారు గువ్వల బాలరాజు గారిని పరామర్శించి బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం మీద 3 కుట్రలు జరగబోతున్నాయి. 10-15 రోజుల్లో ఈ కుట్రలు బహిర్గతం కాబోతున్నాయి అనే అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 2-3 విషయాలను నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఎక్కడైతే రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఉంటాడో ఆయా రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దాడి, దీని వెనకాల నేర మనస్తత్వం ఉన్న పిసిసి అధ్యక్షుడే ప్రేరేపితమని చెప్పారు. సరిగ్గా 4 రోజుల తర్వాత విచారణ అధికారులు ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు విచారణ చేసి శ్వేతారెడ్డి గారు ఒక పత్రికా ప్రకటన చేశారు. దాడి జరిగింది, కుట్ర లేదు, కాంగ్రెస్ లేదు, సెన్సేషన్ కోసమే రాజు అనే యువకుడు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద దాడి చేసిందని ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన. అయితే ఇప్పటి వరకు రిపోర్టు రావు గారు గువ్వల బాలరాజు గారిని పరామర్శించి బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం మీద 3 కుట్రలు జరగబోతున్నాయి. 10-15 రోజుల్లో ఈ కుట్రలు బహిర్గతం కాబోతున్నాయి అనే అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 2-3 విషయాలను నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఎక్కడైతే రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఉంటాడో ఆయా రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ దాడి, దీని వెనకాల నేర మనస్తత్వం ఉన్న పిసిసి అధ్యక్షుడే ప్రేరేపితమని చెప్పారు. సరిగ్గా 4 రోజుల తర్వాత విచారణ అధికారులు ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు విచారణ చేసి శ్వేతారెడ్డి గారు ఒక పత్రికా ప్రకటన చేశారు. దాడి జరిగింది, కుట్ర లేదు, కాంగ్రెస్ లేదు, సెన్సేషన్ కోసమే రాజు అనే యువకుడు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద దాడి చేసిందని ఆ జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన. అయితే इప్పటి వరకు रिपोर्टू को बारिस्टर पड़ा है। इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है, इनको बेल दिलाए से वाले कौन है? दुब्बा का एमएलए रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का एमएलए। बारिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं। बारिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे अब आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे, मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से, एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है।
किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या? कासिम रिजवी का है एमआईएम पार्टी। दारुसलाम जो जागीर है, जायजात है, कासिम रिजवी का जायजात है, वो आपको तो पता है ना। वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई। आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर्स है, एमआईएम का हेडक्वार्टर्स है। आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आप बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए? योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप भी यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता। कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं। आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिए, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी मेरा सवाल स्वीकार करो। दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में को बारिस्टर पढ़ा है। इन एक केस में अंदर गए तो इनका वकील कौन है, इनको बेल दिलाए से वाले कौन है? दुब्बा का एमएलए रघुनंदन राव। रघुनंदन राव कौन है? बीजेपी का एमएलए। बारिस्टर खुद का केस खुद का वकालत कर सकते हैं। बारिस्टर नहीं, आम आदमी भी खुद का वकालत कर ले सकते, कोई वकील को रखने का जरूरी नहीं है। जब असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी एमएलए दुब्बा का रघुनंदन राव इनका वकालत लेकर इनको बेल दिलवाया संगारेड्डी कोर्ट में, वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे अब आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके ने। बार बार मेरे बारे में आप कह रहे। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से। एमआईएम किसका पार्टी है? कासिम रिजवी का। कासिम रिजवी कौन है? रजाकर है। किसका? निजाम नवाब का सेनापति। वो रजाकर, वो कासिम रिजवी का पार्टी है। आज के तारीख में आपको कासिम रिजवी बोल के बुला सकता हूं क्या?
कासिम रिजवी का एमआईएम पार्टी दारुसलाम जो जागीर है जायजात है, कासिम रिजवी का जायजात है, वो आपको तो पता है ना, वो पार्टी का अध्यक्ष है। तो कल से मैं असदुद्दीन ओवैसी को नाम से नहीं बुलाता हूं, कासिम रिजवी बोल के मैं बुलाता हूं। तो मेरे बारे में अगर सचमुच आप जो बोल रहे वो बात सही हुआ तो सीधा सीधा जाके वही केंद्र सरकार में मैं मंत्री बनता था। 20 साल से कभी मैं वो पार्टी से काम किए क्या? ये बात छोड़ो भाई, आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशा महल भी एक है। गोशा महल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर से, एमआईएम का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का एमएलए राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका? मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। यहां पर मैं सवाल करना चाह रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी मुझे बोल रहे अब संघ परिवार के है नहीं है, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में अब बयान दे दो। भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानता हूं, मैं इससे पहले भी गया, आगे भी जाऊंगा। मगर आप कब भाग्यलक्ष्मी मंदिर को मानने में लग गए? योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह वहां पर दर्शन करने के बाद आप भी यकीन करना शुरू कर दिए क्या? बुलाना था जहांगीर पीरला दरगाह में, बुलाना था दिल्ली में निजाम के जो दरगाह है, दरगाह में आओ, दरगाह में उठाओ बोल के कुछ बोलना था। अब दरगाह में नहीं बुला रहे, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुझे बुला रहे। मेरे कोई एतराज नहीं वहां पर आने के लिए। उसके साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ दास और अमित शाह के कास पट्टा, उसके दिमाग, उन लोगों के दिमाग में, दिल में जो है वही काम करते। बीजेपी का एमएलए, सीनियर नेता, उसका नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक नहीं रहता, कितने बार आपके घर में, शास्त्रीपुरम आपके महल में दावत दिए। कर्नाटका चुनाव में आपके ही गाड़ी में वो कर्नाटका चुनाव बीजेपी का काम किए उन्होंने। ये सच है नहीं है? मैं वही भाग्यलक्ष्मी मंदिर में गीता मैं उठा के मेरे सर पे लगा के मैं जो बोल रहे आप, मैं कसम खाता हूं, आपको हिम्मत है मक्का मस्जिद में कुरान उठा के सर पे लगा के मेरे घर पे अमित शाह और योगी का खास आदमी बीजेपी एमपी मेरे घर पे नहीं आया, मैं दावत नहीं दिया बोल के आप मक्का में कुरान उठा के आप बोलने का तैयार है क्या? जुम्मे के दिन मैं आता हूं, पहले मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मैं उठाता हूं, वहां से मैं सीधा सीधा मक्के में आ जाता हूं। मक्के में आप कुरान उठाओ, सर पे लगाओ, बयान दो कि मेरा घर पे कोई बीजेपी एमपी नहीं आया, मैं उनको दावत नहीं दिया, मेरा गाड़ी गुलबर्गा में नहीं छोड़ा बीजेपी चुनाव के लिए। हिम्मत है तो असदुद्दीन ओवैसी मेरा सवाल स्वीकार करो। दोनों कसम खाएंगे एक ही बार। मैं पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर में